So I was mentioning about what the different weaponry is being used. So another one is the Arrow missile defense system. This is a long range missile defense system being used. So there are different like versions of it or stages like Arrow 2 and Arrow 3 are there. So it is Arrow 3 is being capable of exo-atmospheric interception also, which is outside Earth atmosphere. So you can imagine the level of advancements. Then there is Merkava main battle tank. Merkava main battle tank being used by Israel. So it is equipped with the Trophy active protection system. Then there is F-35I Adir. So this is a multi-role fighter jet. It is again one of the variants of the American F-35 Lightning II stealth multi-role fighter jet. Then there are F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle. So these have proved to be the backbone for their airstrikes. So it is again equipped with smart bombs, air to ground missiles. Like there is one missile is the AGM-65 Maverick missiles. Then there is spike anti-tank missiles which are being used. Then there is precision guided munitions being used, like laser guided bombs or GPS guided bombs are being used. Then we have unmanned aerial vehicles are also being used, like the names are Heron is there, Itan is there, and Hermes 450 for reconnaissance, surveillance, and even armed strikes. And apart from this, Barak 8 is one of the most advanced air defense system being used, and cyber warfare is also being used by Israel. So the name of their unit is Unit 8200. So they are involved in both offensive and defensive cyber operations to disable the enemy's communication system, their control systems, and the networks. नेक्स्ट, वाई इसराइल हैज इन्वेडेड लेबनान। तो लेबनान के अंदर में जो हिजबुल्ला है, इट इज ऑल्सो, हम बोल सकते हैं, हाइब्रिड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिजबुल्ला। दैट इज वाई इट इज biggest most proximate manifestation of Iranian threat located in the north of Israel। और उनके पास 25,000 से लेकर के एक्टिव फाइटर है, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रिजर्व है, एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग arsenal of rocket and missile। That is why Israel has chosen to remove Hezbollah from Lebanon by use of cyber as well as air as well as ground intervention। तो अभी पेजर अटैक हुआ था, साइबर था, एयर इन्वेंशन भी यूज किया गया विद द यूज ऑफ टारगेटेड स्ट्राइक, जैसे अभी F-16 और बाकी सबका नाम दिया गया, तो उसके थ्रू एट अ ग्राउंड सर्वाइवल, ग्राउंड इंटरवेंशन का बात हो रहा है। क्योंकि हेजबोला, क्वेश्चन उठता है क्यों ऐसा है, क्योंकि हेजबोला हैज इंटीग्रेटेड इटसेल्फ विद इन द लेबनानीज सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, आउट पेसिंग द स्टेट एबिलिटी टू डेवलप पब्लिक गुड्स। मतलब हेजबोला एक तरह से ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन चुका है लेबनान के अंदर में। तो जो विक्ट्री है हिजबुल्लाह के लिए वो है कि एक तरह से कंसेंट, लेजिटिमेसी विद इन द पीपल ऑफ लेबनान। तो इसलिए, लेकिन वो हमास का ऐसा नहीं है। हमास सिर्फ और सिर्फ गाजा के अंदर में, हमास वेस्ट बैंक में नहीं है। वेस्ट बैंक में PLO है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इवन हुदी है, वहां पर लेजिटिमेसी इशू है इन येमेन। तो लेकिन हिजबुल्लाह ही अकेला है जिसको थोड़ा लेजिटिमेटी बोला जाता है, यही कारण। नेक्स्ट, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट इसमें मेंशन है, जस्टिस हीमा कोहली हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ। उनको पूछा है कैसे जुडिशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, तो इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन, बिकॉज जुडिशियल पावर्स इट कैन बी इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट, इट कैन नॉट बी डिक्रीज। और the basic structure of constitution it is not defined, it is on the basis of the constitutional morality as well as the interpretation by the supreme court। और सेकेंडली कि आर्टिकल 32 टू 226 है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे हैव द राइट, दे हैव द पावर टू इन्फोर्स द रिट सो दैट द सेफ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कैन बी मेंटेन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथनिंग होना फ्रॉम विद इन इट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई हम लोग जब बात करते हैं कि थर्ड जज केस जो हुआ जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट हुआ, कोलेजियम सिस्टम हुआ, तो कहीं ना कि उसके अंदर में थोड़ा रिफॉर्म चाहिए, दैट शुड कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट विद इन। और एक की एस्पेक्ट इसमें दिया हुआ है कि जब हम लोग
जब वो बात करते हैं रिगार्डिंग द जजमेंट, तो उसमें आई डिडंट से दैट माई कंसाइंस, आई सेड माई जुडिशियल कंसाइंस। मतलब कि देयर हैज टू बी डिफरेंस बिटवीन द माई कंसाइंस, मेरा क्या सोच है इस पर, rather than कि जुडिशियल कंसाइंस क्या है। तो जुडिशियल कंसाइंस को फॉलो करना चाहिए, तभी जा करके जो नॉन पार्टीशनशिप है और इफेक्टिविटी ऑफ जस्टिस है वो अचीव हो सकता है। फिर क्वेश्चन उठता है अनप्रेसिडेंटेड पेंडेंसी क्राइसिस इन सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए आर्बिट्री काउंसिल हो गया, लोक अदालत हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों के बीच में मेडिएशन, तो मेडिएशन काउंसिल का रोल एक इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अंदर में जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, तो ऐसा बात होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और डेली बेंच है, इसके अंदर मुझे चेंजेस आना चाहिए लॉन्गर रन में, कि जो सीनियर जजेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे, जो 5 एंड अबव होता है। बाकी बाकी फिर अगर डेली जो जजमेंट होता है उसमें जूनियर सुप्रीम कोर्ट जज जो अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए वो बैठे। ट्रिब्यूनल्स आर इन्वॉल्व इन जुडिशियल वर्क विच इज प्रिटी पार फॉर द कोर्स। तो बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो रहा है, क्या हम लोग इंसुलेट कर सकते हैं कंप्लीटली फ्रॉम डोमेन ऑफ पब्लिक एंड सी हाउ कोर्ट फंक्शन। तो बोलते हैं देर इज मोस्ट, जहां पर सनलाइट ज्यादा होगा वहां इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, क्योंकि इट विल लीड टू ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल प्रोसेसेस। दैट इज वाई जो ई कोर्ट सिस्टम हो गया या फिर एक फास्टर सिस्टम है कोर्ट के अंदर में, जहां पर जजमेंट जो दिया जाता है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द बोर्ड, इवन इन लोअर जुडिशरी एज वेल एज द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उसमें होता है। तो फिर बोला जाता है कि जो रोल क्या है, सो द गवर्नमेंट डिसाइड टू हैव अ सीट एट द टेबल इन डिसाइडिंग हु शुड बी जजेस। तो ये ऑलरेडी ये बोलती है कि कॉलेजियम सिस्टम तो इंटरनल है ही, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट इज नॉट डिसाइडिंग राइट नाउ। गवर्नमेंट का जो इनपुट है इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आईबी का जो रिपोर्ट होता है, इंटरनेट ब्यूरो का रिपोर्ट है, वहां पर गवर्नमेंट का ऑलरेडी रोल है। जो इनपुट होता है कि जो कैंडिडेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज है क्या वो सही कैंडिडेट है, करप्शन चार्जेस है, या फिर कहीं कोई दूसरे जो हनी ट्रैप तो नहीं हुआ उनके ऊपर, क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसी और दूसरे कंट्री के इन्फोर्स तो नहीं कर रहे उनके ऊपर में। तो कहीं ना कहीं जो आईबी का रिपोर्ट है इट इज लेड बिफोर द कॉलेजियम, और कॉलेजियम डिसाइड्स कि होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्ट्री अपॉइंट्स द जज विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट एज वेल एज द प्रेसिडेंट। लेकिन क्वेश्चन उठा है कि दे शुड नॉट बी विटो, because within the system of collegium has input from several sources, और उसके बाद ही collegium takes a call। तो इसमें बोल सकते हैं कि जो वीटो पावर है इट शुड नॉट बी विद द गवर्नमेंट, इट शुड बी द जज फ्रॉम विद इन। ये और बस एक ही हाईलाइट दिया हुआ यहाँ पर कि जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो 20 टू द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख है, जो कम है, मतलब एज कंपेयर टू व्हाट यूएन मैंडेट्स। नेक्स्ट वी हैव कर चुका। एयरफोर्स प्लान्स टू प्रोक्योर 12 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जब भी बालाकोट टाइप स्ट्राइक करते हैं तब उसके अंदर में अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, एवैक बोलते हैं, AWC, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयर। तो उससे क्या होता है कि जो रेडार मैपिंग है, रेडार सिग्नेचर है, इट इज रिड्यूस्ड, और आप डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो 6 एवैक्स इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ DRDO, एयरबस 8321, क्योंकि अभी डिलेड प्रोसेस है। तो इंडिया में ऑलरेडी कौन कौन सा है, तो इंडिया के पास P8 हो गया, नेत्र हो गया, जो प्रोवाइड करते हैं बैक। तो कहीं ना कहीं इसको यूज किया गया था बालाकोट में भी 2019। And these new नेक्स्ट early warning aircraft would be called as MK-1A. And there would be again important role of the DRDO Center for Airborne Systems. They'll be making the changes and modifications. हम्म
नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स प्लेन पुश द एनवलप ओवर द चेन्नईज मैरिना रीजन। तो वहां पर 15 लाख क्रॉड हैड अराइव्ड, और उसके हिसाब से वहां पर नहीं किया गया था। ओवरऑल जो बोल सकते हैं उनका अकोमोडेशन ढंग से नहीं था, इसी कारण डेथ हुआ। बहुत सारे लोग वहां पर, 5 हैव डाइड, हु हैव वॉच द एयर शो हैव फेंटेड एंड डाइड, हार्ट अटैक आ गया उनको। तो ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या टिकट सिस्टम होना चाहिए इसमें, कि एयर शो सबको चाहते हैं देखने का, किसको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत कम ही जगह होता है ऐसे एयर शो। इसमें सुखोई भी है, तेजस भी है, कावेरी भी है, STT-40 भी है, राफेल भी है, तो C-17 ग्लोब मास्टर भी है, MiG-29 भी है, PC-7 एयरक्राफ्ट, सब चीजें, मतलब हर एक जो यूज होता है एयरक्राफ्ट सब है इसमें। तो आग सामने से देखने का मौका नहीं मिलता, सब कुछ आगे वहां पर। तो इसको, Just because of again stating कि climate or इसमें क्वेश्चन despite उठता है कि एयर शो humidity. क्यों इंपॉर्टेंट है, एयर शो क्या डिसाइड, क्या क्यों कर किया जाता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं। तो पहली बात है कि जो एक एयर शो, इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट पावर। इसे दिखाई दिखाई देता है कि लॉन्ग टर्म नैरेटिव क्या होगा, आपके पास क्या वेपन्स है, और एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है सिटीजन के विदिन, कि सिटीजन को फील होता है कि उनको सिक्योरिटी फील होता है कि ये सब वेपन्स है, और एयरफोर्स का पावर और कैपेबिलिटी उसमें दिखाई देता है। एट द सेम टाइम जो एनिमीज है वो देखते हैं कि कौन कौन सा वेपन कैसे यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो एक तरह डिटरेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एयर शो सिर्फ शो नहीं है, इट इज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। Right. नेक्स्ट, स्टोरीज ऑफ, नेक्स्ट, स्टोरीज ऑफ हेल्थ एंड होप। आयुष्मान भारत डायरेक्टली 5 लाख रुपीज दिया जाता है 10 लाख परिवार को, और आयुष्मान भारत को इंक्लूड किया गया है सीनियर सिटीजन को भी। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि जो हेल्थ रिलेटेड इनसिक्योरिटीज है इसको तो रिड्यूस करता ही है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। आरोग्य मंदिर बनाए हैं, 1,75,000 आरोग्य मंदिर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे फोकस किए हैं। और हम लोग भीष्म जो मॉडल है, हम लोग जो यूक्रेन को भी दिए थे, पोर्टेबल हॉस्पिटल, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आशा वर्कर और जो वर्कर्स है उनको भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, 37 लाख आशा वर्कर, उनके लिए स्कीम ला रहे हैं। सीनियर सिटीजन 70 ईयर्स से अबव है उनको भी कवरेज दिए जा रहे हैं। तो इट विल बेनिफिट 4.5 करोड़ फैमिली, अराउंड 6 करोड़ सीनियर सिटीजन। तो कहीं ना कहीं जो एजिंग पॉपुलेशन है जो लॉन्ग टर्म में होंगे वो भी इसके अंडर में आएंगे। और धीरे धीरे हर साल इसके अंदर में अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग मेडिसिन, एज वेल एज न्यू न्यू सर्जरीज ऐड हो रहा है, वो दिखाते हैं कि इंक्लूसिव बनते जा रहा है PMJAY। प्लस जो नेटवर्क है इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी है और गवर्नमेंट सेक्टर के भी है। 25,000 हॉस्पिटल आर इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटी, और 13,000 आर प्राइवेट सेक्टर। तो ये दिखाता है कि 57% आर इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज इंक्रीजिंग। तो एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर है, एक तरह का एक सिक्योरिटी बफर प्रोवाइड करता है सिटीजन को विथ रिगार्डिंग टू द हेल्थ। लेकिन इसमें अलग अलग क्रिटिसिज्म है, एक लिमिटेशन है, एक क्रिटिकल अप्रेजल है। कैसे? पहला कि आशा वर्कर को इंक्लूड किए हैं, लेकिन क्या उनका सोशल सिक्योरिटी है? दूसरा कि आप प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किए 57%, तो उसके अंदर में एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट बढ़ाया जाता है। कभी कभी सेम जो सर्जरी है वो इंश्योरेंस के अंदर में दुगना हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर के इंक्लूड होने से प्रॉफिटेबिलिटी और कमर्शलाइजेशन का क्वेश्चन उठता है कि प्राइवेट, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं है उसके अंदर में, कम क्यों है उसके अंदर में। तो तीसरा होता है कि जो आयुष्मान भारत है, क्या वो प्रीमियम चार्ज करके हर एक सिटीजन के बीच में नहीं करना चाहिए? आप फ्री नहीं करें लेकिन प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं हर एक सिटीजन के लिए। फिर चौथा हो सकता है विथ रिगार्डिंग टू के प्रिवेंटिव केयर है, इसके अलावा भी और भी चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गया, या फिर हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज CT स्कैन मशीन, वो बहुत महंगा है, वो कॉस्टली है, 10 करोड़ 6 करोड़ रुपीज एक CT स्कैन मशीन का दाम है। उसको कैसे हम लोग अफोर्डेबल बनाए? तभी CT स्कैन जो बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है इन डायग्नोसिस, इट बिकम्स अफोर्डेबल। ऐसे एक्सरे आज है वैसे। तो
हम लोग सेकेंड लेयर में जा सकते हैं रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन सर्जरी, जो स्कैनिंग पार्ट है, क्योंकि बायोमार्कर को स्कैन नहीं करेंगे तो आप कैंसर नहीं हो सकता। सिटी स्कैन कभी क्या होता है, इंश्योरेंस मॉडल होता है, बड़े बड़े जो इंश्योरेंस कंपनी, एक दो नाम है सनराइज और वो देते नहीं है पैसा सिटी स्कैन का या फिर एक्सरे का या फिर बाकी जो स्कैनिंग। तो जो डायग्नोसिस है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ सिक्योरिटी, जो इंक्लूड है ही नहीं आयुष्मान भारत में। आयुष्मान भारत में जो इंक्लूड है वो मेडिसिन है, वो सर्जरीज है और बाकी सब, तो इसको भी करना चाहिए। बोलो मानसी, ऐड करना। और कोई नया पॉइंट तो नहीं है, बस वी कैन से कि all this ecosystem that is being created around the healthcare system, it would lead to universal healthcare services to the people, as we talk about also. But this is again unique to India's aspirations and the needs which are again which exist. Simply it is और not based on again the financial support only. की फैक्ट दिया यहाँ पर, 8 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन हुआ है पिछले 6 साल में, 8 करोड़। नेक्स्ट। Health benefit packages bhi haan iska component hai. And then this data which is the longitudinal study on aging. It is stating that 75% of elderly they have one or more chronic diseases. So from the perspective of geriatric care, it is important. जो recent decision अभी हुआ. नेक्स्ट। ट्रेड नॉट जस्ट ग्लोबलाइज बट इज ऑल्सो नॉट वेपनाइज। कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल सीबीएम, एग्जाम्पल चाइना, यूएस, उनका ट्रेड वॉर हर एक चीज के ऊपर, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म बिटवीन द कंट्रीज लाइक वेस्टर्न यूरोप, यूएस एक्सेट्रा विद रिगार्ड टू स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, और जो कंट्रीज जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। तो जो ट्रेड है, इट इज नॉट वेपनाइज्ड। रोल ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर्स, रोल ऑफ अदर बियॉन्ड ट्रेड, फॉर एग्जांपल लेबर कोड, ह्यूमन राइट्स, इसको यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड फॉर नेगोशिएशन एंड डब्ल्यूटीओ कि ट्रेड को वेपनाइज नहीं किया जाए, उसके लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म चाहिए। और साथ ही साथ देयर हैज टू बी अ प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, डीजीएफटी का रूल आ गया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी 2023 इसमें बात करते And also यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि wars are diverting the focus from IMEC corridor हैं। construction, after multilateral development bank reforms, and thirdly climate change. So it will directly impact in a massive manner on all these, we can say, global areas of concern and which are of importance. Because resource diversion or finance is limited, it will lead to more again, more resources would be needed to further reconstruction, also reconstruction and recovery. तो जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए यूज होना चाहिए था, इट इज इन अ वे इट इज गेटिंग डाइवर्टेड. नेक्स्ट। इसमें न्यूट्रल स्टैंड का बात हुआ है, पीएम एमपीसी जो दे डिसाइडेड दैट दे विल कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड। हॉकिस भी नहीं होगा ना कि डोविश होगा, क्योंकि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है इट इज विद इन द लिमिट, दैट इज हो सकता है। 6.5 है अभी एक तरह से। बिकॉज अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक स्टिल अभी कंसर्न है, स्पेसिफिकली जब हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं. 60,000 acres of salt pit land available for industry use। वो बात करें 60,000 एकड़ है अनयूज्ड ऑन प्रोडक्टिव सॉल्ट पैन लैंड अक्रॉस द कंट्री। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, हाँ ठीक है, मतलब कि रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट लैंड, क्योंकि वहां पर सॉइल हैव डिग्रेडेड, क्योंकि हाईली सॉल्ट रीजन है और एसिडिटी ऑफ सॉइल बढ़ गया वहां पर, तो इट कैन बी रिक्लेम्ड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सच एज हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, इको सेंसिटिव प्रोजेक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उससे डिस्काउंट मिलेगा। और 60,000 एकड़ छोटा नहीं है, बहुत बड़े हैं, तो उसमें जो इनिशियल कॉस्ट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, उससे लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकता है। दैट इज वहाँ पे इंडस्ट्री इको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। 50% ऑफ द गाइडलाइन वैल्यू सर्कल रेट में मिलेगा लैंड। 25% ऑफ द कॉस्ट भी है कुछ कुछ जगह पे, 20% डिस्काउंट है कुछ जगह पे। तो कौन करेंगे? तो डीपीआईआईटी करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
And also लिखा हो कि for aquaculture या salt water fisheries, sea water cultivation, agricultural innovation, the land would be available at 25% of the cost. और गुजरात 85% टोटल सी वाटर प्रोडक्शन करते हैं। फिर तमिलनाडु और राजस्थान है 6-6%। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेविंग टेक बैकसीट, फोकस शिफ्ट टू वेल्थ क्रिएशन। तो इसमें बात किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट हैज नैरोड 0.7%, इंडिकेटिंग गैप बिटवीन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग हैज डिक्रीज्ड। और But बात की overall, कि हम लोग, हाँ बोलो। overall अगर हम बोल रहे हैं कि the focus is shifting towards wealth creation, but when we are seeing this shift towards major inflow of again retail investors savings or the money into the capital market in the form of investments in equity, or they are investing or doing intraday trading in futures and options, so that is also a concern because we saw recently that data stated 90% of those investors are under losses. So it is kind of a loss. It is not actually creating wealth for them. हम्म, ठीक। हिंडल्को एस JSW, दे आर इन रेस फॉर झारखंड कॉपर में, झारखंड माइंड में। कहाँ पे रखा कॉपर में, हाँ रखा। It will increase the capacity of 2.5 million ton per annum to 5 million ton per annum. और हिंदुस्तान कॉपर जो, it is under the administrative control of the mining industry. It has engaged in mining of copper ore and owns all the property leases of the copper ore. तो कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ा सकते हैं विद द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इसमें। And also, यहाँ पे लिखे जैसे the ore production from the open cast mine has now been exhausted, and underground mine is operating below the existing open cast mine, leaving some barrier pillars. Apart from this, ये एक तो एक safety concern highlight हो गया, and the environmental impact जो होता है। सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि the site inspection by various authorities of state forest department has been completed. So we're talking about the environment impact assessment before going ahead with the auctioning process. So developer come operator and क्लियर। environment. नेक्स्ट, इन्वेस्टर बेटिंग ऑन इवॉल्विंग एरिया हेल्थ टेक्नोलॉजी। ऐसे पूछा था इस बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रोल है हेल्थ में। पिछले साल तो इसे पूछे थे हेल्थ में टेक्नोलॉजी कैसे रोल होता है, तो पेरेंटिंग कम्युनिटी, बीटो, पर्सनल डायबिटिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, इंजीनियरिंग सर्विस इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। तो ओवरऑल $7.6 billion हैव बीन रेज्ड अप, इसमें से 931 million, अप्रोक्सीमेटली $1 billion, इट हैज रेज्ड अप इन हेल्थ टेक स्टार्टअप, मेडिकल इमेजिंग से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो टेक्नोलॉजी, इट विल ऑगुमेंट, इट विल सपोर्ट the overall health aspect, overall health services provided by the government as well as private sector, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो डायग्नोसिस हो, ऑनलाइन डायग्नोसिस हो या सेंसर के थ्रू हो, हर जगह। तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन बस एक चीज में रखना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड है, इट शुड बी सिक्योर्ड, डेटा प्राइवेसी फॉलो करना चाहिए। प्लस डॉक्टर और जो पेशेंट के बीच में ट्रस्ट और डेफिसिट कभी कभी होता है, वो कम होना चाहिए। कभी वो तब हो सकता है जब कमर्शलाइजेशन में फोकस नहीं किया जाए, रादर देन सर्विस बेस्ड सिस्टम। और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, कि घर में बैठ के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं रादर देन अब जा करके। ऑनलाइन सिस्टम, ग्रीवांसेस सिस्टम होना चाहिए। आप कहीं पे कुछ मेडिकल मेल प्रैक्टिस हो जाए तो ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो जो सिटीजनशिप चार्टर हो गया, गवर्नेंस हो गया, उस पर फोकस कर सकते हैं इसमें। Also जैसे AI guided mental health platform भी है, we can remember examples भी यहाँ दे रखे हैं, वाइसा है, reveal health tech, then online pharmacy भी example है health technology का ही, digital health insurance। ये इनिशियल हम बोल सकते हैं जो हमें चेंजेस देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी, बट नाउ वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स स्पेसिफिसिटी एंड स्पेशलाइजेशन। हम्म। द चेंजिंग मनी हैबिट ऑफ इंडियंस, पोस्ट पैंडेमिक फॉल इन हाउसहोल्ड नेट सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग।
कहीं ना कहीं 11% था, वो अभी 5.8%। फाइनेंशियल एबिलिटी 5.8% है अभी। Household saving are expected to accelerate with rising income, retaining their position of top net lender to the rest of the economy in coming decades. मतलब सेविंग बढ़ा है अगर बोल सकते हैं, है ना? नहीं, सेविंग कम हुआ है, बढ़ा कैसे है? वी आर सीइंग कि जो अगेन शिफ्ट फ्रॉम फाइनेंशियल टू रियल फिजिकल एस्टेट सेविंग ऑफ एसेट्स में हाउसहोल्ड हैव बीन राइजिंग इन पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स। पहले 11% था, फिजिकल अभी सेविंग, दोबारा। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स राइज हो, वही वेल्थ क्रिएशन का शिफ्ट जो हमने अभी ऊपर बात करी कि like financial savings includes deposits, investments in mutual funds, shares, government securities, the insurance, as well as small savings. So these are more of being invested into the wealth creation aspect या फिर in real estate sector जो major shift देखने को मिला, because again real estate sector में हमें boom देखने को मिला after 2020. So now we are seeing, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे कासा डिपॉजिट्स भी फॉल हुए, so that was also one of the changed trend, major एक structural change था. But now of late we are seeing that people are realizing that most safe asset जहाँ पे risk कम होगा in terms of investment also, so that is again कासा या जो बैंक डिपॉजिट्स है, तो बैंक डिपॉजिट्स का ट्रेंड फिर से इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट डाइकोटमी. सो अगेन इकोनॉमी में अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब होता है व्हेन वी से सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. सो हियर इफ वी टॉक अबाउट दिस डाइकोटमी, सो इकोनॉमिस्ट दे बिलीव definition of saving investment that firstly needs to change, because again the meaning has changed, or the methodology or the technology, the options, all of these things has evolved. Then we can say as the growth in the cost effective fintech has led to diminished role for the bank's financial intermediation. This we have seen one another major change or the reform. So it also reflects strong structural change which is necessitating a relook at the savings and investments as well as financial intermediation. So regulation of fintech sector, or when again we are focusing upon its growth, so we talk about the gift city. So it is again related to all of the fintech firms which are operating FDI related to that in that particular region. So it is kind of an SEZ. Then when net savings are computed to be low, it would be noted that when households borrow, it is largely used for creating assets like homes, which leads to capital formation. So this is also again one, this is positive thing कि capital formation हो रहा है when borrowings को basically कैसे use किया जा रहा है. But the challenge is again creation of the capital here, like it is majorly seen for construction of homes. तो वो क्या उनके लिए revenue generate करेगा, because we have to repay the debt as well. And Next. current account deficit भी fall हुआ है. So this is also one of the positive. So it has narrowed to 0.7% of GDP in financial year 2024, indicating overall gaps between the investment and savings. It has actually narrowed. And dependence on foreign capital has also reduced. MDB can, it is very crucial to meet the financial climate action, especially for country which are heavily indebted. तो हमें ब्राजील का एग्जांपल जो लिए कल विथ रिगार्डिंग टू फॉरेस्ट और वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि एमडीबी जो मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, जैसे एआईआईबी हो गया, एडीबी हो गया, एनडीबी हो गए, कैसे वो बढ़ा सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन फॉर द क्लाइमेट गोल्स, क्योंकि जो स्मॉल कंट्रीज है दे आर वेरी डिपेंडेंट और उनके पास कॉर्पस नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो $100 बिलियन इन लॉन्ग टर्म बोला जा रहा है कि आप दे सकते हैं, जो लो इंटरेस्ट रेट पर वापस रीपे हो सकता है। Like 2022 में they have already extended the climate finance beyond $100 billion. So target था $65 billion, but it has been more than $100 billion. So again, when it comes to equity in availability of climate finance, and again जैसे USA made the promise कि it will be providing with the $100 billion, but वो fulfill नहीं हो पाया. But जो MDBs हैं, they are again meeting on their targets. So they have important role when it comes to even availability of the climate finance या common but differentiated responsibilities fulfill होनी चाहिए. Firstly वो recognize और acknowledge होनी चाहिए. So developed countries की तरफ से we see again a kind of a barrier here.
हम्म ये एक बार बता दो शॉर्ट में। Okay, so it is this is one of the point of views कि there it can be a solution. So a way to reduce income inequality is to work more. But given that उसमें कुछ conditions fulfill होनी चाहिए, we can say that if you have to work more, तो आपकी income increase हो सकती है. Given again there is trade-off between how much number of hours you are working and how much number of hours you decide for leisure. So it would also depend upon the tax rate. So if the tax rate, particularly income tax rate, as we say that it is a progressive tax rate, so that is also simultaneously help in reducing the income inequality. And when we're talking about the indirect tax reforms, so in that GST and further reforms that we talk about, that the the GST slabs that should be reduced to three, and which is going to be more suitable for India is another question. And which tax rate, or again, when we talk about the tax rate rationalization, so which will also not hamper the tax revenue of the government as well. So then we can say that then the Laffer curve, it comes into the picture in terms of deciding the most optimum tax rate, which would be maximizing the tax revenue. So if we go by this article, so like there's factors which are recognized, like time honored virtue of hard work. If you work harder and smarter, you'll earn more. So we can say one of the opportunities is again gig economy also, when it gives you some additional boost to your income. And but there the concern or the challenge is that it is not so suitable for the low skilled sectors. There is again heavy competition there itself, but it's not for so easy to get into that as well. Then it comes to again, we're talking about the US workforce, like about 20% of variance in lifetime earnings can be explained by difference in hours worked. So whether it is going to suit the Indian economy and our method of working, again, our economic structure is another question. So if हम्म you put more time, total time, this leads to higher lifetime earnings. Second, you invest more in your human capital, makes you more productive. So this is one important thing we can talk about कि हम upskilling की बात करते हैं, या फिर जो recent employment incentive scheme है, that is also in line with this reformation of the ITI centers which are there. And then we also talked about the important role of, like, recently government it introduced the scholarship scheme or the internship scheme where private sector is having a major role. So one lesson is that if you're going to work hard, you should do so relatively early in your life so as to reap the human capital benefits for future years. नेक्स्ट मालदीव्स एंड इंडिया उनके रिलेशनशिप तो उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि Mohammed Mizu have flagged the need for the financial aid to the country. Approximately $400 billion has been given to it. And he has said that New Delhi is fully cognizant of the island nation's fiscal situation and will be always be ready to ease the burden as one of the MEA's biggest development partner. India is a developmental partner. क्योंकि पहला इशू हुआ था कि स्ट्रेन था कि इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसके बाद फिर मैजुब और उनके जो पार्टी ऑफिशियल थे दे हैव क्रिटिसाइज इंडिया फॉर पोस्टिंग इट्स ट्रूप्स इन इट्स आइलैंड और कहीं ना कहीं चाइना का रोल बढ़ते जा रहा है तो इसलिए दोनों के बीच में एक थॉ था प्लस उन्होंने बताया क्या देयर इज अप्रिशिएशन ऑफ कमिटमेंट टू द इनहांस द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज और India is also already fully cognizant of the fiscal situation. $1.4 billion ऑलरेडी दे चुके हैं अभी 440 दिया गया बस तो एक तरह मेथड है बाय द इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे पब्लिक एजुकेशनल प्रोग्राम किया जाता है थ्रू मीडिया थ्रू न्यूज़पेपर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए टू डील विद साइबर क्रिमिनल तो एक तरह हाईलाइट किया गया डोंट मतलब रेड में दिया हुआ है डूज मतलब ग्रीन में दिया हुआ है वी हैव एंडेड
Thank you everyone for joining, and we will continue with the next set of important articles in the next session.